वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द बिग मास्टर। आज हम बात करेंगे पानी की, जल की, यानी कि वाटर। दोस्तों, वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। खाने के बिना ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा केवल 3% है, उसमें भी 2% यानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। What is painful is that about 1 to 2 billion people lack safe drinking water. The World Health Organization considers access to safe drinking water a basic human right. The bitter fact is that more people die from unsafe water than from wars. दोस्तों, पानी हमारे जीवन का आधार है। Today we will talk about water with a very prominent personality, Dr. Arvind Kumar, who is president of India Water Foundation. Dr. Arvind has devoted his life to the cause of water, and his contributions have been immense and well acknowledged. His expertise and knowledge have been benefited organizations all over the globe. India Water Foundation enjoys a very special status in the governing body of the United Nations Environment Assembly. Dr. Kumar has been instrumental in providing a new impetus to the water and environment movements in India by disseminating knowledge on water and environment related issues. Welcome, Dr. Arvind Kumar. सभी को मेरी नमस्कार। Tell us about India Water Foundation and its aims and objects, and how far you have achieved these. India Water Foundation basically work in Asia Pacific region, and as it is in the name that it work for water, but with the related areas as well, like health, environment, education, and SDGs and NDC as well. So top down and bottom up both. And why India Water Foundation means, at the time when we actually formulate India Water Foundation, at the time there is some problem in the country, in the region, and we have lot of issues. That's why India Water Foundation is formed to sensitize, incentivize and galvanize through cooperation, coordination, convergence. How serious we are about water, conservation of water, and have we reached anywhere in the recent past? If you see, water means everything. Water is a connector, not a sector, and water means potable, non-potable, agriculture, industrial, household, everything comes in water, and water is for health. Water is for your sustainable development as well. Means it covers entire SDGs, from right from the end poverty to the nobody left behind. Dr. Arvind, water levels are going down globally, especially in India. What are the reasons, and what are we doing about it? जिस तरह का हम देख रहे हैं माहौल कि पिछले 30 साल से सुना जा रहा है कि वाटर की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और ऑलमोस्ट लास्ट 10 सालों में क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ा है। उसका 2 बड़े कारण हैं। एक तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस वाटर था, नदियां हैं, नाले हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, वो सब चौकट हो गए हैं। और दूसरा रीज़न है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा पानी इवोपरेट हुआ है, या जो जिस तरह से वाटर साइकिल को आप देखते हो, पानी सब जैसे इकट्ठा होकर सरफेस वाटर के थ्रू समुद्र में जाके मिलता है, और वहाँ से फिर वापस भाप बन के उड़ता है। तो इस सारी प्रक्रिया में आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं यूटिफिकेशन हमारे तालाबों में हुआ है, या हमारे एसिडिफिकेशन हमारे समुद्रों में हुआ है। तो उसने वहाँ की जल जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। इधर बढ़ते शहरों की आबादियाँ, और किसी तरह से हम अगर देखते हैं कि ग्रीन को हमने बढ़ाना है, ब्लू को हमने भी बढ़ाना है, ये सब चीज़ें हमने ध्यान में नहीं रखी। हमने एकदम से सोचा विकास हो जाए। विकास का मतलब कंक्रीट के जंगल, नई इमारतें, नई सड़कें, तो हम इसको विकास मानते हैं।
अब उस विकास की हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो ये है कि जो पानी हमारे भूजल जिसे कहते थे, जो हमारे हजारों साल की बारिश हुई उसके बाद में वो स्तर को उसने एक लेवल पे तक रहता था, वो अचानक से बहुत तेज़ी से घट गया। या फिर हमने एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा ज़्यादा विकास करने की सोची, गेहूँ उगाया, ज़्यादा एग्रीकल्चर करना हम विकास समझते थे। अब उस विकास का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो थी वो रेन फिट से जो है आपकी एक तरह से सेल्फ जो फिट होती है, यानी कि नदी का पानी या फिर आपका ग्राउंड वाटर से जो पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पे आ गई। उससे आने से पानी की एकदम से कमी पड़ी। और हमारी कुछ पॉलिसीज़ जिसमें कि हमने बिजली फ्री कहीं पे कर दी, कहीं पे हमने कोई अंकुश नहीं लगा कर रखा किसानों पे या फिर हमारे ठेकेदारों पे, या फिर हमारे जो रोज़मर्रा के हमारे जो विकास कार्य थे, इन कॉलोनियाँ बन रही हैं, लोगों के लिए मकान चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, हमें सबको खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, तो इन सब की का खामियाजा पानी को भुगतना पड़ा, क्योंकि सब में पानी लगता है एक तरह से समझ लीजिए कहीं ना कहीं। तो उन सब चीज़ों को हमने ध्यान ना देना, एक तो उस क्राइसिस को ना समझना और उसको विकास ना मानना, क्योंकि लोग कहते हैं ना पानी तो ऐसे ही, पानी तो हमेशा हो रहेगा, पानी क्या दिक्कत है। तो क्राइसिस को हमने जो अंडरस्टैंड नहीं करा उसका हमें आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए सबसे पहला रोकथाम तो क्या होता है, दुनिया में हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, यानी कि भाई किस तरह से हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे MDGs आए, अब SDGs आए हैं। हम एक कम्युनिकेशन, अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो हम जमा करते हैं, उस कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि हम किन किन क्षेत्रों में किस तरह से अपने पॉल्यूशन को घटा रहे हैं, CO2 को, बाकी को, और किस तरह से हम पानी के फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4-5 तरीके हैं। पानी कहाँ है, या तो ज़मीन के अंदर है, या सरफेस पे है, या प्रेसिपिटेशन यानी कि बादल के पास है, या आपके समुद्र में है। अब समुद्र का पानी जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपने अभी देखा को दुबई में अचानक से बहुत बारिश आ गई, कोई कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग करी, लेकिन सही बात तो ये है कि एकदम से एब्रप्ट जो बरसात हो जा रही है या एकदम से मौसम जो बदल जा रहा है, वो कई चीज़ों के लिए नुकसानदेह है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल प्लानिंग। तो आप सभी लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना होगा, यानी कि 6.1 से लेकर 6.6 तक, मीन्स इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हम उसका जो पानी आ रहा है उसको वापसी कितनी हो रही है। मेन चीज़ क्या होती है, जो पानी आ गया तो एक बार आ गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो उसको रिसाइकिल रीयूज़ करना पहली चीज़ तो, और रिप्लेनिश करना। या फिर कुछ चीज़ों जो उसमें पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कौन सी चीज़, प्लास्टिक डाल रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ जो कि उस पानी को दोबारा उपयोग में लाने के काबिल नहीं रहा उसको। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा पानी का सेक्टर एकदम से प्रभावित हुआ। तो परेशानी का मेन कारण है कि हमारा जो किसी भी इस सेक्टर को संजोने का तरीका गलत था। लेकिन पिछले 10 सालों से इस सरकार काफ़ी संजीदा है और पानी को सेंटर स्टेज में इन्होंने सोचा है और कई बड़ी योजनाएं ये लेके आए हैं। और इसमें बहुत सारी सिविल सोसाइटी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वी आर टू लेट इन द डे? ये तो एफर्ट्स पहले होने चाहिए थे। पॉपुलेशन कहाँ पहुँच गई, 145 करोड़, 1450 मिलियन, और पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विजन होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वी आर टू लेट, हम बहुत देरी से हम जागे। लेकिन मैं जिस तरह समझता हूँ, वाई इंडिया वाटर फाउंडेशन आपको बताया था, तो उस समय क्या था कि जब तक एक ज़माने में क्या था कि पानी की कमी देश में नहीं थी, क्योंकि उतनी ज़्यादा संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं था। तो संसाधनों का जो दुरुपयोग आपने किया है, चाहे आपने इंडस्ट्री के लिए किया है, या आपने मकान बनाने के लिए किया है, या आपने किसी और वजह से भी किया है, या आपने कुछ नहीं तो इतना ज़्यादा रैपर कल्चर जो इस देश में आया, जो पहला होता सुबह खाना सुबह ख़त्म करते थे, बाहर का खाना कम खाते थे। तो जो हम कहते हैं ना सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, जो सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, जो भी सस्टेनेबल जिसको कंज्यूम करना है, यानी उसका प्रोडक्शन जितना है उतना ही कंज्यूम करेंगे हम। आपको नहीं लगता कंजर्वेशन ऑफ वाटर शुड बी द मैसेज एवरीवेयर? उसके लिए हमने एक जल मित्र बनाया था जब इंडिया वाटर फाउंडेशन फॉर्म हुआ। तो मेन पर्पस जो इंडिया वाटर फाउंडेशन का था, एसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि दुनिया भर की एजेंसी से जो भी जानकार संस्थान है, जो भी है, उसको जानकारी को इकट्ठा करना और लास्ट में तक उसको पहुँचाना, क्योंकि इसका समाधान जानकारी है। पहला जानकारी होगी तो हमारे पास नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। नेचर बेस्ड सोल्यूशन में ट्रेडिशनल विजडम, यानी ऐसा नहीं था हमारे पूर्वज जो है कि पानी की जानकारी नहीं रखते थे, वो भी रखते थे। हम कालांतर में और ज़्यादा चीज़ों में पड़ गए। हमने ये सोचा कि विकास का मतलब बड़ी बड़ी लंबी ऊंची इमारतें, या फिर कंक्रीट की सड़कें, या फिर
तेज़ी रफ्तार से दौड़ती गाड़ियाँ या कुछ और चीज़ें। अब उसको जो हमने माना तो हम उन सब ट्रेडिशनल विजडम को भूल गए। तो एक तरफ ट्रेडिशनल विजडम को हमने संजोना है, दूसरा क्या है कि जो है लर्निंग जो है वो इंटरनेशनल ने कहीं भी कोई अच्छा काम किसी कंट्री ने, छोटे कंट्री ने, बड़े कंट्री ने करा है, किसी समुदाय ने किया है, हम उसको इकट्ठा करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे जिसको ज़रूरत है, यानी कि टेलर मेड सोल्यूशन। और अब जैसे इंडिया वाटर फाउंडेशन ने किया, एक एक स्टेट को लिया, मेघालय को लिया, सिक्किम को ले गया, आज आप देखते हैं वहाँ पे एक सस्टेनेबल मॉडल बना है। अब वाटर का खाली वाटर से नहीं हो सकता, वाटर का मीन्स कि जब सब चीज़ों को आप सस्टेनेबली कंज्यूम करोगे, प्रोडक्शन का आप ठीक वाटर का अपने आप हो जाएगा। बरसात तो हो रही है, लेकिन आपको कृषि कानून पे भी परिवर्तन चाहिए, आपको और भी कानूनों में लाना है, इसके लिए पूरे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। और उस फ्रेमवर्क के तहत जो है हम जब काम करेंगे तो हम हर आदमी ये नहीं कहेगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो कहेगा मेरी जिम्मेदारी है। तो हम एक कहते हैं ना, एक अच्छे शहरी की तरह जब हम बर्ताव करेंगे तो हम वहीं से अपने में व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तो पड़ोसी के लाएंगे, पड़ोसी के लाएंगे तो हम एक शहर में, एक राज्य में, एक देश में और एक दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। पानी पे बहुत कुछ काम हुआ, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपने जैसे कहा कि क्योंकि अभी उतने लेवल का नहीं जितने हम उससे क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाए। आम आदमी के लेवल का देखिए, रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, पानी का भरा हुआ ग्लास आधा पीते हैं, जो उससे भी कम पीते हैं और बाकी वेस्ट जाता है। क्यों नहीं ये रेस्टोरेंट्स को, ये जो पब्लिक आउटलेट्स हैं, चाहे वो उसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं ये कहा जाता कि आप पानी वेस्ट कर रहे हैं? आज से करीब 10 साल पहले हमने एक मुहिम चलाई थी। जैसे आप वहाँ रेस्टोरेंट में, होटल में ठहरते हैं तो रोज़ टॉवल पर आप गीला करके छोड़िए। तो ऐसी ग्रीन गुड डीड्स जिसे कहते थे, और सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन का ये, यानी कि जितनी आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हिंदी में कहने का मतलब इसका, बस जितना आवश्यकता है। अब आवश्यकता से ऊपर जब भी करेंगे, अपने अहम को बढ़ाने के लिए मैंने इतना खाद्य टन अनाज का उत्पादन कर दिया, मैंने इतनी गगनचुंबी इमारतें बना दी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अब पानी को ख़त्म कर रहे हैं इस दुनिया में। जो है अब कोई तारा आकर टकराएगा नहीं इस पृथ्वी से, तो हम राशनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुबह दांत साफ कर रहा है तो पानी बह रहा है, और नहाता है तो पानी चाहिए 2 बाल्टी, वो तो फुहारा चल रहा है ऊपर से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो इस पे अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? अब इसके लिए हमने जैसे क्या वाटर राशनिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जो कि अब पिछले 10-12 साल पहले हमने स्टार्ट किया था कि पानी पंचायत के थ्रू, यानी गाँव में सबसे ज़्यादा मिसयूज़ है। उन्हें पता तालाब है, नदी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे को क्या ज़रूरत है। लेकिन बढ़ते हुए शहरीकरण के, बढ़ते हुए आवश्यकताओं के साथ साथ जो है वो पानी ख़त्म होता चला गया। अब किसी ज़माने में आदमी को नहाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए 2 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ती थी, आज 10 की पड़ती है। मतलब पिछले 10 सालों में हमारी आवश्यकता जो थी पर्सनल, वो 5 गुना बढ़ गई। क्योंकि हमने देखा देखी, कहते हैं ना, हम जो विकास करते हैं कि हम देखते हैं गांव का व्यक्ति शहर में गया, उसने देखा वो ऐसा रहता है, वो तो स्विमिंग पूल में नहाता है। अब हर आदमी स्विमिंग पूल में नहाने लग गया। स्विमिंग पूल का मतलब है भाई पानी का वेस्ट। तो जब भी आप किसी संसाधन का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि दूसरे के लिए ना रहे, देखो आप जो प्राकृतिक संसाधन है वो इस तरह है, मिलजुल के करना है। आप खुद का भी इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए भी रहने दें उसको, क्योंकि ताकि दूसरे भी उसका उपयोग करें। पर ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? इस तरह का मैसेज हम तो अपने हैंडल से, और जहाँ गवर्नमेंट में, जिस कमेटीज़ में, जहाँ भी हम हैं, तो सबसे पहले हमने कहा कि वाटर के लिए या किसी चीज़ के लिए हम गाइडलाइन में, जैसे हमने वेटलैंड रूल बनाए, तो वेटलैंड रूल में जो तालाब हैं, सबसे पहले क्या है, अब एक गांव में 2 तालाब होते थे, एक स्वच्छ पानी का, एक गंदे पानी का। गंदा पानी वहाँ जाता था और नेचर खुद ही अपने आप तरह किडनी का काम करती है, साफ़ होकर पहले वाले तालाब में आ जाता था। इस तरह 2-3 तालाब भी होते थे। तो एक जैसे गांव का एक इकोसिस्टम हुआ करता था। तो आज भी हमें प्रॉपर इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की ज़रूरत है, यानी कि पानी कहाँ से चलता है, अब जैसे भाप बन के वो समुद्र से उड़ा और वापस पानी बह के वहाँ पहुँचा, ऐसे ही जो घरों में हमारा पानी आ रहा है या हमारी कम्युनिटी में पानी आ रहा है, अब वापसी वो गंदे पानी के रूप में जा रहा है। अब उसका क्या यूज़ है? जैसे आपने कहा कि ठीक है, एक तो ग्रीन गुडिटी है कि हम अपने बच्चों को, अपने और साथियों को ये बताएं कि भाई कम से कम इस्तेमाल करना। आप ये समझो ये संपदा हमेशा के लिए नहीं है। तो हर साल बारिश ज़रूर होगी, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। जिस तरह का हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के हमने आज कृषि को बना दिया है, या जिस तरह पूरे सिटी को हमने सीमेंटेड कर दिया है, तो रिचार्ज कहाँ से होगा? वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो नीचे पानी कहाँ जाए, कहाँ से निकाल लेंगे आप? और सरफेस वाटर का ये हाल है कि हमने नदियों को, नालों को बेसिकली एक तरह से डस्टबिन बना कर रख दिया। हम घर से सामान फेंकते हैं, वो नदियों नालों ख़त्म कर देता है। आज अगर नज़ारा दुनिया की जगहों को देखो, आज हिंदुस्तान की बात नहीं, हर जगह
जो नदी और नाले हैं जो कभी आज से 30-40 साल पहले मतलब वो ऐसी नदियाँ होती थी जिसमें पानी नीचे तक दिखाई देता था, आज वो नाले का रूप ले चुकी हैं। तो ये नागरिक जिम्मेदारी है। मतलब स्मार्ट, अगर हमें कोई देश बनाना है या हमने विलेज बनाना तो स्मार्ट सिटीजन्स बनाना। अब स्मार्ट सिटीजन बनाएंगे तो हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे। संस्कार और शिक्षा कहाँ से मिलती है? स्कूल से। तो हमने बच्चों के लिए पिछले 5 सालों से कोशिश करी कि इनके पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट ये सब चीज़ शामिल हो गई आज की डेट में। अब 5th क्लास के बच्चों को SDG के बारे में पता है, 5th क्लास के बच्चों को, 6th क्लास के बच्चों को पता है कि हमारे संरक्षण कैसे उसको संरक्षण करेंगे, कैसे हम अपने माँ बाप को जाके बताएंगे आप जो कर रहे थे गलत था। जरूरी नहीं माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, आज बच्चा भी जब सीख कर जाएगा और अपने माँ बाप को बताएगा मैंने स्कूल में सीखा कि इस तरह से पूरी सभ्यताएं नष्ट हो गई। आप मोहन जुदाड़ो की बात करते हैं या किसी हड़प्पा की बात कर रहे हैं, कैसे ख़त्म हुए हो? पानी कमी की वजह से। तो आप नए मोहन जुदाड़ो, नए हड़प्पा बनाने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, सिर्फ मेरी, आपकी, हम सबकी। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम दूसरे ग्रहों पे जाके पानी की खोज कर रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अपने ग्रह को नहीं बचा पा रहे हम। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, देयर इज़ नो प्लैनेट वी। अभी तक कोई ऐसी दूसरी सभ्यता हमें दुनिया के बाहर नहीं है। अब बचाने का मतलब क्या है कि हमें जागृत करना पहले नंबर के। हम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं, हम हर स्टेक होल्डर को, यानी कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में गए। अब जैसे मैं ये कई मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने, तो हमने कहीं ना कहीं पानी को जरूर जोड़ दिया उसमें। चाहे वो पोषण 2 बन रहा था, MSME बन रहा था, या जितने भी हम मिशन 10-12 मिशन में थे, तो हमने कहीं ना कहीं पानी को जरूर जोड़ दिया कि इसको भी साथ में ले लो, क्योंकि पानी अलग से सेक्टर नहीं है, वो कनेक्टर है। अब कनेक्टर है तो यानी कि हमने अपनी, अगर हमने कम्युनिटी को जोड़ना है तो वेमेन जो सबसे ज़्यादा पानी से जिनका संबंध है, हमारे बुजुर्ग जो पहली पुरानी जानकारी भी रखते हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन, बच्चे, जो कि उस चीज़ को आगे की तरफ लेके जाएंगे। कौन सी ऐसी कमियां थी, जैसे एक ज़माने में डायनासोर नहीं रहे, क्योंकि ऐसा माहौल आया उस टाइम पे, डायनासोर होते थे। अब ऐसे ही ये वाली जनरेशन क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि हमने उन प्रकृति के नियमों को नहीं माना। जब जिस प्रकृति में रहते हैं तो हम उनके नियमों को मानते हैं। एक बिल्कुल कॉमन मैन के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? व्हाट इज़ योर मैसेज? कॉमन मैन से मतलब मेरा किसान हो सकता है, वो काश्तकार हो सकता है, एक आम नागरिक हो सकता है। सबके लिए ये है कि आप पहले ये देखो, अब आपको गन्ने की खेती कर रहे हैं, आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पानी नहीं, तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान जो 75% है पानी का, कहाँ है? खेती से। और कारण क्या था? हमें सभी गन्ना बोना है सभी को हमने वो करना है। तो कहीं ना कहीं क्रॉप पैटर्न चेंज, जो आजकल नई बातें हो रही है कि जहाँ जो चीज़ हो सकती है, अब सीज़न की चीज़ खाएं, लोकल ग्रोन करें, लोकल में रहें। MSME में हमने यही तो डाला कि लोकल जो भी कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो काला नमक था, और अगर हम एस्पिरिन डिस्ट्रिक्ट में रहे तो उसको प्रमोट करेंगे। तो जब हम लोकल चीज़ को प्रमोट करेंगे, बाहर की चीज़ में नहीं जाएंगे, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का मतलब मंथन बहुत सेंसिटिवली करेंगे, क्योंकि हम पता है अपनी चीज़ को महत्व देना, ब्रांड करना है कल को। और माना मेरे पास पूरे सीजन के लिए X अमाउंट ऑफ वाटर है, तो मैं उसको माइनस ना करके प्लस करने की सोचूंगा। हम अपने तालाब छोटे छोटे बनाएंगे, हम उसमें मछली पालेंगे, मतलब किस तरह से उसको हम अल्टरनेटिव जो रिसोर्स से, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले जब हम जाते थे कम्युनिटी में, कोई कहता था चलो मुझे पानी से क्या मतलब है, लेकिन आज उसे पता है गाँव में 4 तालाब बने, तो तालाब से किसी न किसी को तो मतलब होगा। अब तालाब से पानी का स्तर नीचे चला, जो गया था ऊपर उठाया। दूसरा, उसकी आमदनी में हो गई। तीसरा, पानी का पूरे साल जो है एक स्रोत बना रहा, चिड़िया आने लगी उससे, क्योंकि खाली पानी से इंसान ही नहीं, फ्लोरा फौना दोनों, यानी कि अब गौरैया नहीं रही, या किसी तरह से जो पशु जो थे, जंगली पशु थे, वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों में हो सकता है हम उनको जू में देखा करेंगे। आज दुनिया में देखो, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस बोलते हैं, जो एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, तीसरी तरफ महंगाई है। अब तीनों चीज़ों का सीधे पानी पे, रिसोर्सेस पे असर है, क्योंकि अगर जंग हो रही है तो कहीं ना कहीं एक तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट कर रही हो। पानी हमारे पूरे सिस्टम में, इकोसिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इकोसिस्टम में हमारे पशु पक्षी जानवर, हम सब एक समान अधिकार के साथ रह पाएँ। भाई जो अधिकार पानी पे मेरा है वही शेर चीते का है, उनके लिए भी तो वैसे ही अधिकार है ना। तो अब उनके लिए भी जो अधिकार है, तो मैंने अपने फसल बोई, अपना उसका पानी का 80% उठा के अपने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। फिर जानवर तो कपड़े पहनते नहीं, मैंने कपड़े पहने, मैंने तो उनकी खाल भी पहन ली उठा के। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो संसाधनों का मतलब है, खाली पानी का दुरुपयोग नहीं करा है, बाकी संसाधनों का भी दुरुपयोग किया। Dr. Vind, it has been very enriching interaction with you. We hope your views are taken seriously
in the important quarters. Thanks a lot.